افغانستان میں امن و استحکام خطے کی ترقی کی ضمانت ہے۔ افغانستان کو نظر انداز کرنا دنیا کی بڑی غلطی ہوگی۔ پاکستان کو سیلاب کی صورت میں بڑی قدرتی آفت کا سامنا ہے۔ ایس سی او ممالک آئندہ نسلوں کو محفوظ مستقبل کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی جامع حکمت عملی مرتب کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان سمرقند میں ملاقات، اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کے بنیادی مفاد کے تمام امور پر چین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین پاکستان دوستی کے لیے دیرینہ عزم رکھنے والے رہنما ہیں۔ صدر شی جن پنگ: ہماری آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ اور آہنی بھائی چارے نے وقت کی ہر کسوٹی کا مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ سرکاری وسائل کے بے دریغ استعمال کے شدید نکات، سادگی کے سب سے بڑے دعویدار اور خود کو ریاست مدینہ کے عظیم داعی سمجھنے والے عمران خان سابق وزیر اعظم میں سب سے زیادہ سیکیورٹی لیتے ہیں۔ عمران خان کو 255 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 5 گاڑیاں اور جیمرز فراہم کیے گئے ہیں۔ معروف صحافی انصار عباسی نے اس تضاد پر انہیں لاڈلا قرار دے دیا۔ نیشنل فلڈ ریسپانس کی غذائی اجناس خصوصاً ٹماٹر اور پیاز فاسٹ ٹریک پر منگوانے اور گندم، چاول، دالوں سمیت ضروری اشیاء کی فراہمی اور متاثرہ تک ترسیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کیا جائے۔ صوبائی حکومتیں تمام ذخیرہ اندوز افراد کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ NFRCC کے اجلاس میں فیصلہ۔ بارش اور سیلاب سے متاثرہ ریلوے ٹریک پر کام جاری، نظام جلد بحال ہو جائے گا۔ کوئٹہ تفتان ریلوے ٹریک 104 مقامات پر متاثر، تفتان ٹریک 30 ستمبر تک بحال کر دیں گے۔ ڈیرہ الایار سے جیکب آباد تک 11 کلومیٹر ریلوے ٹریک پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ پانی کی نکاسی مکمل ہوتے ہی مرمت کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق۔ درست خبر تک فوری رسائی عوام کا بنیادی حق، لیکن آج سے 70 سال قبل ایک اہم خبر کیوں اور کیسے 5 دن تک چھپائی گئی؟ اس حوالے سے رپورٹ بھی نیوز ایٹ 6 کا حصہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما قاصر۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म के साहम दौरे के दौरान होने वाले इजलास की और उसमें वज़ीर आज़म के खिताब की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम खित्ते की तरक्की की ज़मानत है। SCO के रुकन ममालिक अफगानिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के लिए किरदार अदा करें और ऐसे मौके पर अफगानिस्तान को नज़रअंदाज कर देना बड़ी गलती होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब किया और खिताब में उनका कहना है कि पाकिस्तान को सैलाब की सूरत में बड़ी कुदरती आफत का सामना है। SCO मुल्कों को अपनी आइंदा नस्ल को महफूज मुस्तकबिल बनाने के लिए मौसमानी तब्दीलियों से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करना होगी। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये तफसील बताएंगे इकरामुल्लाह महसूद। शंघाई ताउन तंजीम के हेड्स ऑफ स्टेट कौंसिल इजलास में रुकन और मुबसर मुल्कों के सरबराहान समेत डायलॉग पार्टनर्स और आलमी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। हेड्स ऑफ स्टेट कौंसिल तंजीम का सबसे बड़ा फोरम है जिसमें मुस्तकबिल की तरजीहात और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ECO सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। समरकंद के कांग्रेस सेंटर पहुंचने पर मेजबान मुल्क उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीन, रूस, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तंजीम के मुस्तकिल रुकन हैं, जबकि ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया मुबसर मुल्कों में शामिल हैं। तंजीम के 6 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम से खित्ता मुस्तफीद होगा। तंजीम के मुल्कों को अफगानिस्तान की समाजी व माशी तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। Peace in Afghanistan would ensure peace in Pakistan. In other words, what is good for Afghanistan is good for Pakistan and vice versa. And other countries in the region. It will be a big mistake if we ignore Afghanistan this time around. It is my country's considered opinion that strengthening Afghanistan in the security and counter-terrorism domain should run parallel to SCO's support to the Afghan people in the socio-economic arenas. दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। उन्होंने रुकन मुल्कों से कहा कि हमें मिलकर दुनिया से इस नासूर का मुकम्मल खात्मा करना। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समरकंद में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त इमाम बुखारी के रोज़े पर हाज़री के लिए पहुँचे हैं। ये पहले से प्लान था, शेड्यूल था कि वज़ीर आज़म वापसी से कबल इमाम बुखारी के मज़ार पर हाज़री देंगे। इस वक्त वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद हैं और वफ़द के दीगर अफराद भी इस हाज़री के मौके पर मौजूद हैं। इससे कबल मुलाकातों का एक तवील सिलसिला जारी रहा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ
كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وخاصة الإمام البخاري يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبإجابة دعوتنا جديرة. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त समरकंद में इमाम बुखारी के रोज़े पर हाज़री के लिए पहुंचे थे। दुआ की गई और इसके बाद वफ़द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म भी बाहर तशरीफ़ ला चुके हैं। वफ़द के दीगर अफराद भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी इस मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रोज़े पर हाज़री दी, दुआ की गई और दुआ के बाद रोज़े की से बाहर निकलने के मनाजिर आपने मुलाहिज़ा किए। कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब वज़ीर-ए-आज़म रोज़े पर पहुँचे थे, हाज़री दी, दुआ की गई और दुआ के बाद वफ़द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म बाहर आ चुके हैं। दीगर अफराद भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह मौजूद हैं। समरकंद में आज दिन भर मसरूफ़ दिन गुजारा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंज़ीम का अहम इजलास जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब भी किया और इस वक्त इमाम बुखारी के मज़ार पर हाज़री के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुँचे थे। उनके हमरा वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हज़रत इमाम बुखारी के रोज़े पर हाज़री दी। इस मौके पर फ़ातिहा ख़्वानी भी की उन्होंने और अब ये आप मनाज़िर देख सकते हैं। मज़ार के अहाते में ही मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उन्हें मज़ार के मुख्तलिफ़ हिस्सों का विज़िट करवाया जा रहा है, उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही है। जबकि वफाकी काबीना के अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा हैं जो कि इस वफ़द के हमरा मौजूद हैं। शंघाई ताउन तंज़ीम का ये सरबराह इजलास है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज कलीदी खिताब भी किया, जबकि इसके साथ साथ साइड लाइन्स मुलाकातें भी हुई। 2 तरफ़ा मुलाकातें हुई जिसमें चीन के सदर के साथ भी मुलाकात, रूस के सदर के साथ भी मुलाकात हुई, तुर्की के सदर के साथ भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात हुई है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से भी बात हुई। इस वक्त आप मनाज़िर देख सकते हैं, समरकंद में मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा और वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उन्हें हज़रत इमाम बुखारी के रोज़े के मुख्तलिफ़ हिस्सों के हवाले से विज़िट करवाया जा रहा है। और जो मनाज़िर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं ये बराह रास्त हैं समरकंद से, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ हज़रत इमाम बुखारी के रोज़े पर हाज़री के बाद उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों पर उनको विज़िट करवाया जा रहा है, ब्रीफिंग दी जा रही है। और ये सलमा जो हम मनाजिर देख रहे हैं ये मज़ार के रोज़े के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं और ये ज़ेर तामीर हिस्सा है, इसकी तज़ीनो आराइश की जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को इन हिस्सों पर भी विज़िट करवाया जा रहा है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हाज़री के मनाजिर हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो आपने बिल्कुल ठीक बताया कि विज़िट करवाया जा रहा है, तामीर नौ का सिलसिला जारी है। इमाम इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पर हाज़री के ये मनाजिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा इस वक्त वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म को साथ ही साथ ब्रीफ भी किया जा रहा है इस रोज़े की हिस्ट्री से मुतालिक भी और इसके अलावा तामीर नौ का सिलसिला क्योंकि जारी है मज़ार के अहाते के अंदर और इसके अलावा जो इसकी एक तारीख़ है उसके बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म को बताया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त इमाम बुखारी के रोज़े पर हाज़री के लिए पहुँचे हैं। इससे पहले दुआ की गई है और अभी वज़ीर-ए-आज़म को विज़िट करवाया जा रहा है। आज वज़ीर-ए-आज़म ने मसरूफ़ दिन गुजारा, समरकंद में मुख्तलिफ़ मुलाकातें हुई। अहम मुलाकातों का सिलसिला कल से ही जारी था 2 रोज़ा दौरे के दौरान और आज वज़ीर-ए-आज़म ने शंघाई ताउन तंज़ीम के सरबराह इजलास से अहम और तारीख़ी खिताब भी किया है और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमाम बुखारी
بخاری کے روزے پر حاضری کے لیے پہنچے ہیں، جہاں پر پہلے دعا کی گئی، ابھی وزیر اعظم کو وزٹ بھی کروایا جا رہا ہے۔ مزار کے احاطے کے اندر مختلف حصے جو زیر تعمیر ہیں وہ بھی دکھائے گئے، اور تعمیر شدہ حصے جو پہلے سے جن کی تزئین و آرائش کا کام مکمل ہو چکا ہے وہ حصہ بھی دکھایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو بریف بھی کیا جا رہا ہے اس مزار کی، اس شہر کی تاریخی حیثیت سے متعلق بھی۔ سمرقند میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ دورے پر موجود ہیں۔ اس دورے کے دوران نہایت اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ ایران، ترکیہ، روس اور چین کے صدور سے ملاقاتوں کا سلسلہ کل سے جاری تھا۔ دیگر ممالک کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اہم ترین اجلاس سے تاریخی خطاب بھی کیا، اور اس وقت وزیر اعظم امام بخاری کے روزے پر حاضری کے لیے پہنچے ہیں، جہاں پر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود ہیں۔ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں سمرقند میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف حضرت امام بخاری کے روضے پر حاضری دے رہے ہیں، اور اس حاضری کے موقع پر انہیں اس روضے کے مختلف حصوں کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، تعمیر نو، تزئین و آرائش اور اس کی وسعت کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ازبک حکومت کی جانب سے، اس حوالے سے انہیں آگاہ بھی کیا جا رہا ہے۔ وفاقی کابینہ کے ارکان جو کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ اس دورے پر ازبکستان کے 2 روزہ دورے پر موجود ہیں، جن میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف ہیں، ان کے ہمراہ ان کو مختلف حصوں کے وزٹ کروائے گئے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف روضہ مبارک پر پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سمرقند میں موجود ہیں، حضرت امام بخاری کے روضے پر حاضری دے رہے ہیں، اور انہیں اس روضے کی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ مختلف فیزز رہے اس روضے کے حوالے سے، جو مختلف حصے ہیں اس حوالے سے بھی انہیں بریف کیا جا رہا ہے، جبکہ حضرت امام بخاری کے حوالے سے تمام مسلمان جانتے ہیں حضرت امام بخاری کی اہمیت، ان کی اسلام کے لیے خدمات جو رہی ہیں، انہوں نے جو تصانیف لکھی ہیں۔ حضرت امام بخاری جن کا پورا نام محمد ابن اسماعیل بخاری ہے، ان کے مزار پر آج ان کے روضے پر حاضری دے رہے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ ہیں، جبکہ سمرقند میں میزبان ملک کی جانب سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو بریفنگ دی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ یہ براہ راست مناظر ہیں سمرقند سے، اور حضرت امام بخاری کے روضے سے یہ مناظر ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف وہاں پر موجود بسم اللہ الرحمن الرحیم علی سرر موضونة متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما سبحان ربك رب العزة
اللهم تقبل منا تلاوة المتلوة وبلغ ثواب ما قرأناه هدية إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خاصة إلى روح الإمام البخاري يا رب العالمين وارحمه يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبإجابة دعواتنا جدير يا محول الحال أحسن أحوالنا وحال جميع المؤمنين إلى أحسن الحال اللهم قرآن تعالى bizim Kur'an'la bütün dünyadaki mümin Müslümanlarla zengin, teşvikle, afiyetle, hususan müminler, Türkiye'ye müminlerimiz, Pakistan diyarındaki mümin Müslümanlar, aynı ülkelerdeki felaket ve afetlerini bertaraf kılıp, onlardan ülkelerine rahmet kılıp, hiç günde ularmaya teşvikle, amanlıkta, asayişlerinde bulunmalıklar nasip kılmayın. İslam Bukhari'nin ziyaretleri ve sahabetin صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इमाम बुखारी के रोज़े पर हाज़री के मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे थे और इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल भी मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी इस मौके पर मौजूद हैं। दुआ की गई है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस मज़ार के अहाते में मुख्तलिफ़ हिस्सों का मुआयना कराया गया। मुख्तलिफ़ हिस्से जो ज़ेर तामीर थे, जिनकी तामीर नौ का काम जारी था, वो हिस्से भी दिखाए गए। इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद कुनियत अबू अब्दुल्ला है और वालिद इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मुग़य्यरा हैं। इमाम बुखारी के परदादा मुग़य्यरा हाकिम बुखारा इमाम जाफ़ी के हाथ मुशर्रफ व इस्लाम हुए थे। इमाम बुखारी की वलादत 13 शवाल मुकर्रम 194 हिजरी हालिया सालों के मुताबिक अगर देखा जाए तो 19 जुलाई 810 को बुखारा शहर में हुई थी। इमाम बुखारी के मज़ार पर हाज़री के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुँचे हैं। हाज़री के मौके पर दुआ की गई है और ये रोज़े के अंदर के मनाज़िर हैं जो इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी मौजूद हैं। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल भी इस मौके पर मौजूद हैं। दुआ की गई है। इससे कबल रोज़ा शरीफ के मुख्तलिफ़ हिस्सों का भी मुआयना किया गया, दौरा करवाया गया वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को और उनको इस शहर की, इस रोज़े की तारीख़ी अहमियत से मुतालिक भी ब्रीफ़ किया गया। हज़रत इमाम बुखारी जिनकी इजमा अहादीस में ग्रां कदर ख़िदमात हैं, सही बुखारी शरीफ के नाम से अहादीस की मजमुआ भी मौजूद है और हज़रत इमाम बुखारी का ये रोज़ा मुबारक समरकंद में मौजूद है, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हाज़री दी है और वहाँ फ़ातिहा ख़्वानी भी की गई है। जबकि इस मौके पर हमने देखा है कि खामोशी भी इख्तियार की गई उनके अदब में और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को आगाह किया गया इस रोज़े की तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से, अहमियत के हवाले से और अब जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो तज़ीन व आराइश का काम हो रहा है इस रोज़े के हवाले से, इसको मज़ीद वुसअत दी जा रही है, उस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ़ हिस्सों का मुआयना करवाया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं समरकंद में, जहाँ पर उन्होंने शंघाई सरबराह इजलास में, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में आज शिरकत भी की, वहाँ ख़िताब भी किया और अब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समरकंद में हज़रत इमाम बुखारी के रोज़े पर हाज़री दे रहे हैं और इस मौके पर फ़ातिहा ख़्वानी की गई। जबकि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के वफ़द के अरकान भी उनके हमरा हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल और वफ़ाक़ी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस रोज़ा मुबारक के अहाते में मुख्तलिफ़ जो तरक्याती काम हो रहे हैं, तज़ीन व आराइश के काम जारी हैं, उस हवाले से भी ब्रीफ़ किया जा रहा है और यकीनी तौर पर ये तमाम मुसलमानों के लिए, मुसलमान ममालिक के लिए हज़रत इमाम बुखारी के रोज़े पर हाज़री देना, हदीस के इजमा में जो इनका किरदार रहा और जिस तरह से मुस्नद अहादीस बाकायदा एक मजमुआ है जो हज़रत इमाम बुखारी से वाबस्ता है, जो उन्होंने उनको इकट्ठा किया और फिर नस्ल दर नस्ल वो मुसलमानों तक पहुंचती रहीं और वो फरमान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं और उनकी मुस्तनद होने के हवाले से भी हदीस की किताब में मालूमात मौजूद हैं। बेशक आपने बिल्कुल ठीक कहा रिजवान, ना सिर्फ हदीस का मजमुआ मौजूद है बल्कि बुखारी शरीफ के अलावा भी बहुत सी, यानी कहा जाए तो दर्जनों ऐसी तसानीफ़ हैं जो इंतहाई बुलंद पाया हैं और
मुख्तलिफ हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो किताबें लिखी गई हैं, बिलाशुबा वो नहायत बुलंद पाया कुतुब हैं, अपना एक मकाम रखती हैं वो। और इस वक्त इमाम बुखारी के रोज़े पर हाज़री के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं। बुखारी शरीफ का आपने ज़िक्र किया, जो कि अहादीस का मजमुआ है और जो कि इंतहाई मुस्तनद अहादीस जिसके अंदर मौजूद हैं। समरकंद में इस वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं। इमाम बुखारी के रोज़े पर हाज़री के मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं और इससे पहले दुआ की गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को रोज़े के अहाते में मुख्तलिफ हिस्से जिन पर तामीर नौ का काम जारी था उनका भी मुआयना करवाया गया है। इसके बारे में तफसीलन ब्रीफ भी किया गया है। जिन हिस्सों पर काम हो रहा है उनसे मुतालिक भी बताया गया है। और इससे पहले रिजवान वज़ीर आज़म ने आज नहायत मसरूफ़ दिन गुजारा है। कल जब वो समरकंद पहुंचे थे तब से मुलाकातों का सिलसिला जारी था और मुलाकातों के बाद इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि ये मसरूफियत अभी कंटिन्यू है। अभी वज़ीर आज़म मौजूद हैं रोज़े के अहाते में। इमाम बुखारी के रोज़े पर हाज़री के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुँचे हैं, दुआ की गई है और दुआ के बाद इस वक्त वज़ीर आज़म को विज़िट करवाया जा रहा है। अहाते के अंदर ही मुख्तलिफ ऐसे हिस्सों का जिनकी तामीर नौ का काम जारी है और इस वक्त वज़ीर आज़म के हमरा वफ़द के दीगर अरकान भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समरकंद में हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, उनके रोज़े पर हाज़री दे रहे हैं और फ़ातिहा ख़ानी की इस मौके पर खामोशी भी इख्तियार की गई उनके अदब में। और बताते चलें आपको नाज़रीन कि हज़रत इमाम बुखारी हम जितने भी अहादीस अब देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें रेफरेंस के तौर पर बुखारी शरीफ का लफ्ज़ और उसके किताब का रेफरेंस दिया जाता है। ये वही हज़रत इमाम बुखारी हैं जिनका पूरा नाम हज़रत मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है, जिन्होंने अहादीस इकट्ठी की और उनके मुस्तनद होने के हवाले से उन्होंने जो रिसर्च की और उसको पाया तकमील तक पहुँचाया और उसमें फिर जो रेफरेंसेस हैं, जो रिवायात उन्होंने जिन सहाबियों से रावी किया है और फिर उसके मुस्तनद होने के हवाले से जो मालूमात फ़राहम किए हैं, यकीनी तौर पर मुस्लिम उम्मा के लिए ये बेश बहा एक ऐसा तोहफ़ा है हज़रत इमाम बुखारी की जानिब से। और हज़रत इमाम बुखारी की खिदमात के एतराफ़ में, उनके अदब में, उनको जो अल्लाह ताला ने रुतबा अता किया, तमाम मुसलमान समरकंद का इसकी तारीख़ के हवाले से ज़िक्र भी करते हैं। और उज़्बेकिस्तान के दौरे पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं, तो उज़्बेकिस्तान में जब समरकंद की बात की जाती है तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज हज़रत इमाम बुखारी के रोज़े पर पहुँचे और वहाँ पर हाज़री दी, फ़ातिहा ख़ानी की और उनके अदब में खामोशी भी इख्तियार की गई। और जैसा कि हमारे नाज़रीन ने मनाजिर देखे हैं और हम नाज़रीन के साथ शेयर भी कर रहे हैं, ये मनाजिर मुख्तलिफ़ मकामात पर इस रोज़े को तौसीह दी जा रही है और इस तौसीह मंसूबे के हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को आगाह भी किया जा रहा है, उन्हें ब्रीफ भी किया जा रहा है। यकीनी तौर पर तमाम मुसलमानों के दिल के करीब हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अहादीस के इकट्ठे करने में, उनके इजमा में बहुत मेहनत की, साल मेहनत और हम तक ऐसी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस मुबारक हैं वो पहुँचाईं। तो यकीनी तौर पर ये रोज़ा हज़रत इमाम बुखारी पर हाज़री वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तमाम पाकिस्तानियों की जानिब से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नुमाइंदगी कर रहे हैं तमाम पाकिस्तानियों की और उनके रोज़े पर फ़ातिहा ख़ानी की गई। जबकि जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये अब से कुछ देर पहले के हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना के अरकान और दीगर जो वफ़द के अरकान हैं उन्होंने खामोशी भी इख्तियार की। इस मौके पर तिलावत कलाम पाक हुई और फ़ातिहा ख़ानी भी हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समरकंद में मौजूद हैं। नाज़रीन, कुछ दीगर अहम स्टोरीज़ पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समरकंद में चीन के सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात की, जिसमें आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद चीन के सदर के साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ये पहली मुलाकात है। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग के साथ 5 सितंबर को सुबह सिचुआन में आने वाले ज़लज़ले से होने वाले अलमनाक जानी नुकसान और तबाही पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम इस कुदरती आफत के दौरान चीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन की तरफ से सैलाब मुतासरीन की बर वक्त इमदाद को सराहते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में चीन ने बेहतरीन दोस्त का किरदार निभाया, इस पर चीन के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमी तब्दीली, वबाई अमराज और बढ़ती हुई अदम मसावात जैसे चैलेंजेस से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तमाम अक़वाम के ताउन से ही निपटा जा सकता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक चीन दोस्ती अटूट और बेमिसाल है। पाकिस्तान चीनी शहरियों और कारोबारी इदारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगा। पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जाने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से समरकंद में काज़ाकिस्तान के सदर जुरमात तोकायो ने भी मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, इलाकाई और आलमी उमूर पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान काज़ाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए तंजीम के रुकन ममालिक को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर इल्हाम अलीयोव की पाकिस्तान के साथ ताउन और सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए यकजहती और दिल खोल कर माली इमदाद की फराहमी पर आज़रबाईजान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर जोर दिया कि आलमी बरादरी को मौसमी तब्दीली की वजह से होने वाली इस बड़ी कुदरती आफत के खतरे से निपटने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं जो मुश्तरका तारीख़, अक़ीदे और सकाफ़त में गहरी सतह पर जुड़े हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर आज खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं और इस मौके पर शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास हुआ। और शंघाई ताउन तंजीम ये एक ऐसी तंजीम है जो इलाकाई सतह पर सबसे बड़ी तंजीम है। अगर आबादी की बात करें, ग्लोबल GDP की बात करें या फिर दो तरफा ताल्लुकात की बात करें, तो एक ऐसी तंजीम है जो इलाकाई सतह पर जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को कवर भी कर रही है ये तंजीम। और 1996 में इसका आगाज़ हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान इस शंघाई ताउन तंजीम का रुकन है और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने वक्त के हमरा आज इसमें शरीक हुए और बड़ा कलीदी खिताब भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और फिर मौसमी तब्दीलियाँ। बिल्कुल रिजवान, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, तज्ज़ियाकार हैं, आलमी और मुल्की उमूर पर गहरी निगाह रखते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए वक्त दिया। सर, इंतहाई अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है, वज़ीर-ए-आज़म समरकंद में मौजूद हैं, इसके अलावा आज उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब भी किया है। इन तमाम तर सूरत हाल को अगर सामने रखा जाए, वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकातें, उनका आज का खिताब, तो कैसे देखते हैं इन तमाम मामलात को, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त आलमी तवज्जो की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक शंघाई ताउन तंजीम का ताल्लुक है, ये एक बहुत अहम तंजीम है और मुझे मुस्तकबिल में ये यूनाइटेड नेशन का मुतबादल नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि जैसे अभी आपने बयानिए में कहा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा जो खित्ता है वो है तो ये कम ममालिक, लेकिन इस के बावजूद रकबे के लिहाज से ये दुनिया के तकरीबन 47% बनता है और इसी तरीके से ये मुआशी हिसाब से दुनिया का 42% बनता है। और जाहिर है जूं जूं मामलात दूसरी तरफ जा रहे हैं और रूस यूक्रेन जंग के बाद से ये एक इंतहाई अहम तरीन इजलास है और चीन का, रूस का, पाकिस्तान का और ये सारे न्यूक्लियर कंट्रीज हैं जो बैठ रहे हैं। फिर इसके अंदर डायलॉग पार्टनर्स हैं और जाहिर है अभी जो अरब ममालिक का उसमें शमूलियत और बतौर मुबस्सर के तौर पर बैठने वाले जो ममालिक हैं 6 इसके अंदर डायलॉग पार्टनर्स हैं और इसी तरीके से दीगर जो इसमें तुर्की है, सऊदी अरब है, UAE है, इसी तरीके से म्यांमार है। ये तमाम जाहिर है ममालिक जो है बड़े अहमियत के हामिल हैं। भारत खुद एक बड़ा मुल्क है और ये वो फोरम है जिसके अंदर भारत और पाकिस्तान बावजूद इसके कि न्यूक्लियर ममालिक हैं ये साथ बैठते हैं और चीन का जो असर और रसूख जिस तरह से बढ़ रहा है और शंघाई ताउन तंजीम का सिर्फ मकसद जो है वो ये नहीं है कि कोई जाहरे पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये अमन और सलामती के लिए है, दुनिया के अंदर मुआशी बेहतरी के लिए है, दुनिया के मसाइल का हल जो कि यूनाइटेड नेशन ना निकाल पाया, अमेरिका और उसके इत्तेहादी ना निकाल पाए, ये उसकी तरफ तवज्जो पे तालिब हैं। अब देखना यह है कि दुनिया क्योंकि अब एक मल्टीपोलर दुनिया हो चुकी है और अमेरिका अब वाहिद सुपर पावर का स्टेटस खो बैठा है और अफगानिस्तान का इसके अंदर बैठना एक इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि जाहिर है अफगानिस्तान के सेटलमेंट के बगैर कोई भी, चाहे वो टैपी का मंसूबा हो या कैसा 1000 का मंसूबा हो, वो पाया तकमील नहीं पहुंच सकता। दुनिया को एनर्जी शॉर्टेजेस हैं, पाकिस्तान और भारत उसके अंदर शामिल हैं और ये वो जगह है जहां से तुर्कमेनिस्तान से और इसी तरीके से जो दीगर ममालिक यहाँ बैठे हैं जिनके पास वस्ती एशियाई ममालिक जिनके पास दुनिया के 90% कुदरती ज़राए मौजूद हैं, वसाइल मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक खित्ता जो है आने वाले वक्तों में दुनिया के फैसले करेगा और जूं जूं वक्त गुजरेगा आपको इसकी अफादियत नजर आएगी। पाकिस्तान इसमें
अहम तरीन मुल्क मैं तस्वर करता हूँ। उसकी वजह मेरा पाकिस्तानी होना ही सिर्फ नहीं, वो तो जाहिर है मैं बतौर पाकिस्तानी अपने फ़ख्र करता हूँ, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो महलो वकू है पाकिस्तान का और जिस तरीके से पाकिस्तान के पास गहरे पानियों की जो एक रसाई है और इसी तरह से चीन के साथ एक बराह रास्त राब्ता है, ये वो तमाम अमामिल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक खास अहमियत और मुकाम शंघाई ताउन तंजीम के अंदर हासिल है। वजीर आज़म साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मौसमी तब्दीलियां जो हैं वो यकीनन एक बहुत मुश्किल का जो है वो सामान पैदा कर रही हैं। और अब्दुल्ला गुल साहब, हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी की बात कर लें, अब सलामती की बात कर लें, या फिर यूनाइटेड नेशंस के साथ जो कंपैरिजन आपने किया कि उसके बाद या उसके मुकाबले में भी आ सकती है ये तंजीम। तिजारत के हवाले से जो हम देखते हैं, चीन के सदर हों या फिर रशियन प्रेसिडेंट हों, जो खित्ते के ममालिक हैं जो हमारे इस खित्ते में और पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तानी क़यादत है उसका भी ये ख्याल है कि हमें तिजारत को बढ़ाना है। मजमूई तौर पर जो चैलेंज है वो एक तो मौसमी तब्दीली है, साथ पावर्टी एलिविएशन है, गुर्बत का खात्मा है, तो ये तंजीम क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, ये तंजीम बहुत बड़ा किरदार इसलिए अदा कर सकती है क्योंकि इनके पास वसाइल भी हैं और इनके पास इस खित्ते की मेरे ख्याल में अब कमांड बड़े वाज़े अंदाज में नजर आ रही है, क्योंकि इसमें इस वक्त इस पूरे खित्ते के अंदर आपको मगरिब के ममालिक की प्रेजेंस नहीं नजर आएगी। और फिर ये जो एक ख्वाब है जिसके अंदर रूस से लेके अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से ईरान और पाकिस्तान और तुर्किया जो है, ये सारे जो दरमियान में शामिल हो रहे हैं, ये एक बहुत ही एक जिसको कहते हैं गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकता है। दूसरी बात इसके अंदर अहम तरीन वो ये है कि जाहिर है जो भारत और पाकिस्तान एक बड़े दुश्मन है एक दूसरे के, और पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है, लेकिन भारत की तरफ से कभी भी अमन जो है वो नजर नहीं आता। तो ऐसी सूरत हाल में कोई एक ऐसा फोरम है जहां उनके ऊपर एक दबाव डाल के ये ममालिक जो है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान माबैन जो मसाइल हैं उनको हल को बेहतर बना सकता है। और फिर वक्त आने पर मुझे यहाँ लगता है कि माजी में भी आपको पता है जंगी मशकें जो है वो शामिल थी इसके अंदर, और ये मजीद इसका एरिया दायरा कार बढ़ेगा। और जिस तरह से यूनाइटेड नेशन की फोर्सेज शामिल हैं, इसी तरीके से इसकी फोर्सेज आ जाएंगी और आपको आने वाले वक्तों में ब्रिक्स बैंक जो कि एक जाहिर है एक बहुत बड़ी जो थ्रेट है चाहे मगरबी इकोनॉमी को, वो आपको आने वाले वक्तों में मजीद मजबूती इख्तियार करता नजर आएगा। रूस एक हकीकत है, चीन एक हकीकत है, पाकिस्तान एक हकीकत है, अफगानिस्तान एक हकीकत है, ये तमाम इस्लामी ममालिक और फिर सऊदी अरब का इसके अंदर ईरान का शामिल होना। आप देखें सऊदी अरब और ईरान के माबैन जो है मामलात कोई इतने खुशफहम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस तंजीम की छतरी तले जो है मामलात को, और फिर कतर का इसमें शामिल होना, ये मिस्र का इसमें शामिल होना, ये एक बहुत मेरे ख्याल में एक आने वाला जो एक पैराडाइम शिफ्ट है उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। और पाकिस्तान में फिर अहम है ये इजलास जो मुनक़िद हो रहा है समरकंद में, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा। बहुत मुदल्लल और तफसीली तज्ज़िया आपने दिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बड़ी तफसील से एलाबोरेट किया एक एक चीज़ को कि कितनी अहम ये मुलाकातें हैं, फिर इसमें जितने ममालिक शामिल हैं, जिन सदूर से मुलाकातें हुई हैं, अपनी अपनी जगह अलग अलग हैसियत है हर मुल्क की, और हर मुल्क के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उनको नई जहत मिलती है हर मुलाकात के अंदर। और इसमें बहुत सारे फोरम्स, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें वज़ीर ख़ारजा कौंसिल भी है, इसमें वज़ीर फाइनेंस कौंसिल भी है, वर्किंग ग्रुप्स हैं, वर्किंग रिलेशंस हैं, शंघाई ताउन तंजीम के छतरी तले भी, जैसे अब्दुल्ला हमीद गुल कह रहे थे। और दो तरफा ताल्लुकात, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है, और यही एक विजन है, और इस शंघाई ताउन तंजीम के क़याम का बुनियादी मकसद भी यही था, गुरबत से कैसे निमटना है, इन तमाम ममालिक में मौजूद वसाइल को बुरकार लाते हुए इन्हीं मुल्कों के अवाम की बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। और फिर जो दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा बना हुआ है माहौलियाती तब्दीलियाँ, जिसका सबसे पहले शिकार पाकिस्तान हुआ है। 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड हुई, और जो सैलाब जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता उसका सामना किया पाकिस्तान ने। और अब दुनिया खबरदार कर रही है कि मौसमी तब्दीलियाँ एक हकीकत है और पाकिस्तान तो इसको फेस कर चुका है।
सैलाब मुतासरीन की हम बात करेंगे तो उनकी मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान भी अपील कर रही है और मुख्तलिफ तंजीमें भी अपील कर रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान NDM में, इसके साथ NFRCC बाकायदा तौर पर इकदाम कर रही है। अब हमारी फोर्सेस, हमारी अफवाज पाकिस्तान तमाम शोबे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जाफशानी से काम कर रहे हैं। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है कि जितना हो सके सैलाब मुतासरीन की मदद ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही न्यूज़ शो का वक्त खत्म हो चुका है। हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे इलाकाई खबरें। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।